تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے حیدرآباد کے مضافاتی علاقے منچیرے ولا میں دریائے موسیٰ کے کنارے تعمیر ہونے والے عظیم الشان اونکاریشور مندر کی سنگ بنیاد کی تقریب یعنی بھومی پوجا میں شرکت کی۔ اس مقدس تقریب میں ان کے ہمراہ مقامی کانگریس اراکین اسمبلی پرکاش گوڑ کالے یادیا اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی پوجا ارچنا کی اور ریاست کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گاندھی جی کا مجسمہ جو پہلے یہاں موجود تھا اب اس کی جگہ ایک شاندار مندر کی تعمیر ہو رہی ہے جو روحانیت اور امن کا مرکز بنے گا۔ حکومت نے دریائے موسیٰ کے اطراف کے علاقوں کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے خصوصی منصوبے تیار کیے ہیں تاکہ یہاں مذہبی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ مندر کی تعمیر کے لیے زمین کی پیمائش اور ابتدائی نقشہ جات پہلے ہی مکمل کر لیے گئے ہیں اور اسے روایتی فن تعمیر کے مطابق بنایا جائے گا۔ بڑی تعداد میں مقامی لوگوں اور عقیدت مندوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا جس سے علاقے کی مذہبی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ مندر کی تعمیر کا کام مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عوام جلد از جلد یہاں درشن کے لیے آ سکے۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میٹرو ریل منصوبے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم قرارداد پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اس قرارداد کے تحت اب حکومت تلنگانہ میٹرو ریل منصوبے کی باغ ڈور نجی کمپنی LNT سے اپنے ہاتھ میں لے گی تاکہ اس کے مستقبل کے آپریشنز اور توسیع کو سرکاری نگرانی میں چلایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان کو بتایا کہ اب تک 69 کلومیٹر کا میٹرو نیٹ ورک مکمل ہو چکا ہے اور حکومت نے اس منصوبے کی توسیع میں حائل تمام کلیدی رکاوٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہر کے کونے کونے تک سستی اور بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ریونت ریڈی کے مطابق میٹرو کے اگلے مرحلے کی توسیع کے لیے حکومت خود سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کرے گی تاکہ ٹریفک کے مسائل کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔ اس تاریخی فیصلے کے بعد اب میٹرو ریل مکمل طور پر ریاستی حکومت کے زیر انتظام آ جائے گی جس سے کرایوں اور روٹس کے تعین میں آسانی ہوگی۔ اپوزیشن ارکان نے بھی عوامی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس قرارداد کی حمایت کی اور اسے شہر کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا۔ స్పీకర్ సార్, తమరి అనుమతితో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ క్రింది తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాము। సభ్యులందరినీ ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, విశాల ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ మెట్రో నెట్వర్క్ విస్తరించాలనే వివిధ వర్గాల డిమాండ్ మేరకు మెట్రో విస్తరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది। విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులను, ఎదురవుతున్న సమస్యలను లోతుగా సమీక్షించింది। ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో ఫేజ్ 1 మొత్తము 69 కిలోమీటర్ల మేరకు నిర్మాణం జరిగింది। ఫేజ్ 2A 76.4 కిలోమీటర్లు, ఫేజ్ 2B 86.1 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరణ ప్రతిపాదనలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరిగింది। హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణకు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితిని సభలో వివరంగా చర్చించడం శ్రీధర్ బాబు గారు వివరించడం జరిగింది। ఫేజ్ 1 మెట్రో నిర్వహణలో ఉండగా, ప్రైవేట్ నిర్వహణలో ఉండగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఫేజ్ 2A అండ్ B ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టేందుకు ఎదురవుతున్న సాంకేతిక, చట్టపరమైన, నిర్వహణ సమస్యల్ని దృష్టిలోకి तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने करीम नगर के पुलिस कमिश्नर CP गौस आलम के खिलाफ BRS के रुकन असेंबली पार्टी कोशक रेड्डी के हालिया तबसरों की शदीद मजम्मत की है। असेंबली में खिताब करते हुए वजीर ने वाज़ेह किया कि हक़ाइक़ जाने बगैर किसी अफसर पर ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात लगाना पार्लिमानी रवायात के खिलाफ है और ऐसे मामलात में पहले नोटिस देना लाजिमी है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि CP गौस आलम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की पहले ही मुकम्मल तहकीकात कराई जा चुकी है।
जिस में वो बिल्कुल बेकसूर साबित हुए हैं और उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद निकले हैं। पूनम प्रभाकर ने कोशक रेड्डी को मशवरा दिया कि वो सियासी मकासद के लिए फर्ज शनास सरकारी अफसरान की साख और वक़ार को नुकसान पहुंचाने से ग्रेज करें, क्योंकि इससे पुलिस फोर्स के हौसले पस्त होते हैं। हुकूमत ने वाज़े किया है कि वो अपने ईमानदार अफसरान के साथ खड़ी है और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए किसी भी गैर कानूनी दबाव को कबूल नहीं करेगी। इस वाक़ये के बाद असेंबली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग तेज़ हो गई है, जबकि वज़ीर ने रुकन असेंबली को अपनी ज़बान पर काबू रखने और ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने की ताकीद की है। गौरव सभ्युल మాట నేను అధ్యక్ష మరి కండక్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సంబంధించి no member is expected to use offensive expressions about the conduct or proceeding of a parliament or any state legislature. They are not expected to cast reflection of any decision of the house except of the motion or deciding such a decision. అధ్యక్ష ఎవరైనా గౌరవ సభ్యులు ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు సభ్యుడికి సంబంధించినటువంటి అంశం నేనేం ఒక అధికారి గురించి ఒకవేళ వ్యక్తిగత కక్షలు ఉంటే రాజకీయ పరంగా వాళ్ళ మతపరమైన ఏదో మొన్న జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు నేను ఒక మాట వినండి నేను ఒక మాట మీరు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నేను విన్నా నేను అడుగుతున్నా ఇలా తప్పకుండా బరాబర్ వ్యక్తిగతమైన అంశాలకు సంబంధించి తావులేదు సభ్యులు వ్యక్తిగత విమర్శలకు సంబంధించి చట్టంలో రూల్ బుక్లో కూడా లేదు ఒకవేళ అటువంటిది ఉంటే నోటీస్ ఇచ్చి చర్చ చేయాలి। BRS की रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने असेंबली में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के नफाज में होने वाली गैर मामूली ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जज्बाती अंदाज में बताया कि उनके हलके में कई ऐसी ख्वातीन हैं जिनकी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं और अब उनके बच्चों की पहली सालगिरह भी मनाई जा चुकी है, लेकिन ताहाल उन्हें हुकूमत की जानिब से शादी की माली इमदाद फराहम नहीं की गई। रुकन असेंबली ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक मकामी MLA के दस्तखत के बाद चेक तकसीम किए जाने चाहिए, लेकिन उनके हलके में जानबूझकर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उनके मुताबिक हुक्काम का कहना है कि जब तक वजीर साहिब खुद तशरीफ नहीं लाएंगे तब तक चेक तकसीम नहीं किए जाएंगे, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 6 माह से गरीब खानदान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने याद दिलाया कि माजी में जब उन्होंने इस ताख़ीर का तज़किरा किया था तो कांग्रेस अरकान ने उनका मजाक उड़ाया था, मगर अब ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम के सामने है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुस्तहक़ीन को उनका हक़ फौरी तौर पर दिया जाए ताकि गरीब ख़ानदानों की मुश्किलात कम हो सकें। इस बयान के बाद ऐवान में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के फंड्स के इजरा पर नई बहस छिड़ गई है। कल्याण लक्ष्मी पिల్ల వచ్చిన తర్వాత పిల్ల పుట్టిన తర్వాత ఇస్తున్నారని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ఆ రోజు నవీన్ అధ్యక్ష మీరే తప్పు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు అధ్యక్ష। నా నియోజకవర్గాన్ని అత్నూరా మండలానికి సంబంధించి అధ్యక్ష మరి గోపాల్ మహేశ్వరి డాటర్ ఆఫ్ గోపాల్ వీళ్ళకి సంబంధించి పెళ్ళయింది 18/2/2004 అధ్యక్ష। ఈ 2026 అంటే 2 ఇయర్స్ అయిపోయింది, ఇంతవరకు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ రాలేదు అధ్యక్ష। దీన్ని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతాను, నేను మంత్రి గారు కూడా మీ ద్వారా పంపిస్తున్నాను అధ్యక్ష। మరి అదేవిధంగా బాబు బుట్టి ఫస్ట్ బర్త్డే కూడా అయిపోయింది అధ్యక్ష, మీకు ఫోటో కూడా చూపిస్తున్నాను అధ్యక్ష। బాబు బుట్టి 1 ఇయర్ అయిపోయినాక కూడా ఇంకా కళ్యాణ్ లక్ష్మి వస్తలేదు అధ్యక్ష। మరి అదేవిధంగా ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది అధ్యక్ష, మాధవి అని చెప్పేసి, తన కూడా 2 ఇయర్స్ అయిపోతుంది నాగారం విలేజ్ की इंतवరకు కూడా। मरकजी वजीर बंडी संजय ने तेलंगाना के वजीर आला रिमिन्नत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया है कि हल्का बंदियों और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला सामने आते ही वजीर आला शदीद तनाव और खौफ का शिकार हो गए हैं। उन्होंने तंजना कहा कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो रेवंत रेड्डी जज्बाती और मजहबी मसाइल की सियासत शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अवाम से किए गए 6 इंतखाबी वादे आज़मानतें गारंटीज याद नहीं रहती। बंडी संजय के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा कर रही है, जबकि रियासत के अवाम अब भी बुनियादी सहूलियात और फलाही स्कीमों के नफाज का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला की तवज्जो सिर्फ अपनी सियासी बक़े पर है और वो अवामी फलाह व बहबूद के बजाय सिर्फ बयानात की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि बीजेपी हल्का बंदियों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है, जिससे रेवंत रेड्डी की सियासी ज़मीन सरकती हुई नजर आ रही है।
इस तीखे सियासी वार के बाद रियासत में हुक्मरान जमात और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग मजीद तेज हो गई है और अवाम में उन 6 जमानतों के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो गई है। ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గాల పునర్విభజన 33% మహిళా రిజర్వేషన్ అన్న వెంటనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. డిప్రెషన్లో పోతున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడాల్సిన మాటలకు కాకుండా దిగజారి ఒక ప్రధానమంత్రి స్థాయి వ్యక్తిని గాని పార్టీలను గాని విపక్ష పార్టీ నాయకులను గాని దిగజారి ఏ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తుండో మనం చూస్తాం. ముఖ్యమంత్రి భాష చూసిన తర్వాత తెలంగాణ సమాజం ఇలా నవ్వుకుంటున్నారు, అసహించుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి భాష చూసిన తర్వాత ఈ తొక్కుతాము లోపల తొండ దొరగొడతామనో ఆ భాష చూసిన తర్వాత నవ్వుకుంటున్నారు జనం. మీరు నవ్వుతున్నారు, జనమంతా నవ్వుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి భాష చూసి. ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవహార శైలి మార్చుకోవాలి. ఎలక్షన్ రాగానే మాకు గుండ్లు గుర్తొస్తాయి, ఆయనకు గారి గుడ్డు గుర్తొస్తుంది. ఎలక్షన్ తర్వాత తొండలు గుర్తొస్తాయి, తొక్కులు గుర్తొస్తాయి ఆయనకు. కానీ 6 గ్యారెంటీలు మాత్రం గుర్తురావు ఆయనకు. ఇచ్చిన హామీలు గుర్తురావు. मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा एटाला राजेंदर ने हफ्ता 28 मार्च को बोइनपली सब्जी मंडी में धरना दिया और हुकूमत की मुबैना गफलत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 9 माह से सफाई के ठेकेदारों और बैत अल-खला की सफाई करने वाले मजदूरों को उजरत अदा नहीं की गई है, जिसकी वजह से पूरी मंडी कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। एटाला राजेंदर के मुताबिक सफाई के निज़ाम के दिरहम बरहम होने से मंडी में ताफुन फैल रहा है और यहां आने वाले किसानों और खरीदारों की सेहत को शदीद खतरात लाहिक हैं। बीजेपी रहनुमा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाएं ताकि सफाई के अमले को बहाल किया जा सके और मंडी को गंदगी से पाक किया जा सके। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और मकामी ताजरों ने भी उनका साथ दिया और महकमा मार्केटिंग के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे मंडी में काफी देर तक गहमागहमी रही। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर जल्द ही कचरे की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया और गरीब मजदूरों के वाजिबात अदा न हुए तो वो अपने एहतजाज के दायरे को मजीद वसी करेंगे। फ़िलहाल मार्केट यार्ड की इंतजामिया ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि कचरे के पहाड़ अवाम के लिए अजियत का बाइस बने हुए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आईपीएल सीजन के आगाज के साथ ही क्रिकेट सट्टाबाजी और गैर कानूनी बैटिंग नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह जारी किया है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने वाज़ेह किया है कि जो लोग क्रिकेट जैसे खेल को जुए में तब्दील करके मासूम शहरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ पीडी एक्ट जैसे सख्त कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगरचे बैटिंग ऐप्स को न कहीं जैसी मुहिम्मात की बदौलत सैकड़ों ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अब ये ग्रो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं। पुलिस की खुसूसी टीमें अब शहर के मुख्तलिफ मकानात, फार्म हाउसेस और खुफिया ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं, जहां ऑफलाइन सट्टाबाजी की सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। हुक्काम के मुताबिक मकामी बुकीज नौजवानों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनका माली नुकसान हो रहा है बल्कि उनका मुस्तकबिल भी दांव पर लगा हुआ है। कमिश्नर ने अवाम से अपील की है कि वो इस तरह की सरगर्मियों से दूर रहें, क्योंकि बैटिंग से सिर्फ मुंतज़मीन को फायदा होता है, जबकि हिस्सा लेने वाले अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि डिजिटल निगरानी और ज़मीनी छापों के जरिए इन सिंडिकेट्स का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, ताकि मुआशरे को इस लानत से पाक रखा जा सके। అందరికీ నా తరఫు నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి పేరు నమస్కారాలు। రేపటి నుంచి ఐపీఎల్ సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది। ఆ స్టార్ట్తోనే మళ్ళీ బెట్టింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఒక సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది। అందరు కూడా తెలుసు, మనము
గత సంవత్సరం సే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్తోని చాలా ప్రజా ఉద్యమంని నడిపించడం జరిగింది. దాని సక్సెస్తోని ఒక బిల్ కూడా రావడం జరిగింది. ఏమైనా మళ్ళీ బిల్ వచ్చిన యాప్స్ ఆగిపోయావు, కానీ టెలిగ్రామ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రకరకాల కొత్త కొత్త యాప్స్తోని మళ్ళీ వీళ్ళు అమాయకుల్ని బలి చేయడానికి చాలా ముందు వస్తున్నారు. అట్లానే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళతోని చేయి కలపడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా తెలుసు. महबूब नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला इजलास इस वक्त शदीद हंगामा आराई की नज़र हो गया, जब प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जी और मेयर की तौहीन पर अपोजिशन अरकान ने सख्त एहतजाज किया। BRS के कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टेज पर मौजूद डिप्टी मेयर, मकामी MLA और कमिश्नर ने मेयर ममता को, जो कि पसमानदा तबके BC से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हैं, मुनासिब इज्जत और मकाम नहीं दिया। BRS अरकान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक मुंतखब खातून मेयर की तजलील कर रही है और सरकारी तकारीब में उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। इजलास के दौरान BRS और कांग्रेस के अराकीन के दरमियान तल्ख कलामी और शदीद बहस व तकरार हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिरहम बरहम हो गई। मेयर के एहतराम के मुतालबे पर जब इंतज़ामिया और हुक्मरान जमात की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, तो BRS कॉरपोरेटर्स ने एहतजाजन इजलास से वाक आउट कर दिया। इस वाक़ये के बाद शहर की सियासत में गर्मा गर्मी पैदा हो गई है और पसमानदा तबकात की तंजीमों ने भी मेयर के साथ इस सलूक पर बिरहमी का इजहार किया है। फ़िलहाल कॉरपोरेशन के पहले ही इजलास में होने वाली इस बदमज़गी ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है कि आया मुस्तकबिल में तरक्याती कामों पर इत्तिफाक राय हो सकेगा या नहीं। మేడం మీకు ఉంటే మీ పార్టీ తరఫు నుంచి ఉండండి, లేదంటే సార్ మీ ఇంటి దగ్గర తీసుకొని పోయి మంచిగా సన్మానం చేయండి. యాజ్ ఎ కౌన్సిల్ మెంబర్ గా మేము అందరూ అడుగుతున్నాం. हैदराबाद की अंबरपेट पुलिस ने कमल नगर में वाक़े मेराज बेकरी नामी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अचानक छापा मारकर इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में तैयार किए गए उस्मानिया बिस्कुट के 159 कार्टन जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान यूनिट के मालिक मोहम्मद मेराज को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इंसानी सेहत के साथ खलवाड़ करने और ग़िज़ाई अशिया में मिलावट के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। छापे के दौरान इंकिशाफ हुआ कि बिस्कुट तैयार करने वाले मजदूरों ने हिफाजती लिबास और सर के ढक्कन नहीं पहने थे, जबकि खाम माल गंदे फर्श पर खुला पड़ा था और हर तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं। पुलिस के मुताबिक दीवारों और छत से रंग उखड़ रहा था और कीड़े मकड़ों से बचाव के लिए सफाई के कोई इंतजामात या तिब्बी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं थे, जो अवामी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बिस्कुटों को खुशबू देने का अमल भी इंतहाई गंदगी में अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये मसनूआत इंसानी इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार दी गई है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मिलावट शदा अशिया को तलफ कर दिया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके की दीगर बेकरियों और फूड यूनिट्स में भी खलबली मच गई है और महकमा खुराक ने निगरानी मजीद सख्त कर दी है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके बोइनपली सेंटर पॉइंट पर एक कसीर अलमंजिला इमारत में वाक़े चश्मों की दुकान में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया और आसमान की तरफ काले धुएं के बादल बुलंद होने लगे। खुशकिस्मती से जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, दुकान के अंदर कोई मुलाजिम आगाहक मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान होने से बाल बच गया। मकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं और सख्त जिदोजहद के बाद मुक़्तदिर शोलों पर काबू पाया ताकि आग आसपास की दीगर दुकानों तक न फैल सके। दुकान के मालिक का कहना है कि आग की वजह से लाखों रुपए मालियत के कीमती चश्मे, फ्रेम और कंप्यूटराइज्ड मशीनें जलकर खाकिस्तर हो गई है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान पहुंचा है।
पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके हादसे की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया है और इलाके में बिजली के कनेक्शंस की जांच पड़ताल की जा रही है। इंतजामिया ने दुकानदारों को मशवरा दिया है कि वो आतिशज़दगी से बचाव के आलात नस्ब करें और वायरिंग की बाकायदगी से जांच करवाते रहें ताकि ऐसे हादसात का तदारुक हो सके। आंध्र प्रदेश के मंडल यलमंचिली के गांव जिम्पापालम में इस वक्त शदीद तनाव पैदा हो गया जब तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने जिनसीना के रुकन असेंबली सुंदरपू विजय कुमार को एक तकरीब में शिरकत से रोक दिया। रुकन असेंबली यहां एक मकामी रहनुमा यल्पो सतेश की दावत पर श्री राम नवमी की तकरीबात में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर जिनसीना में शामिल हुए हैं। टीडीपी के मुश्तइल कारकुनों ने एहतजाज करते हुए सवाल उठाया कि माजी में कई बार मदऊ किए जाने के बावजूद रुकन असेंबली ने कभी उनके प्रोग्रामों में शिरकत नहीं की, तो अब वो अचानक यहां कैसे आ रहे हैं। मुजाहिरीन ने विजय कुमार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनका रास्ता रोककर अपनी नाराजगी का इजहार किया, जिसकी वजह से इलाके में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बिगड़ने लगी। जिनसीना और टीडीपी के हामियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और तल्ख कलामी को देखते हुए माहौल मजीद बोझल हो गया और तसादुम का खदशा पैदा हो गया। सूरत-ए-हाल को काबू से बाहर होते देखकर और मजीद हंगामे से बचने के लिए रुकन असेंबली विजय कुमार बगैर किसी तकरीब में शिरकत किए वहां से वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इस वाक़ये ने दोनों इत्तेहादी जमातों के मकामी कारकुनों के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात को सतह पर ला दिया है और सियासी हलकों में इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिला चित्तौड़ में बंगलुरु तिरुपत शाहरा पर पालम कोलापली के करीब एक इंतहाई दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति की तरफ जाने वाली एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़ी बस से पीछे से जोरदार तरीके से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार मियां बीवी और उनकी मासूम बेटी मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त तेलंगाना के शहर वरंगल के रिहायशी श्रीधर राव, उनकी अहलिया लक्ष्मी और 4 साला बेटी इद्विका राव के तौर पर हुई है, जबकि कार ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। टुकर इतनी शदीद थी कि कार बस के नीचे बुरी तरह फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए पुलिस को जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बंगलुरु से वापसी के दौरान ये अलमनाक वाकया पेश आया और पूरा खानदान इस अचानक हादसे की नजर हो गया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हाईवे हुक्काम ने मुसाफिरों को शाहरा पर गाड़ी चिल्लाते वक्त इंतहाई एहतियात बरतने और रफ्तार को काबू में रखने की ताकीद की है। मुक़द्दस शहर तिरुपति के मुज़ाफ़ाती इलाके रघुनाथ रिजोर्ट्स के करीब बदनाम ज़माना चट गैंग की सरगर्मियों ने मकामी रिहायशियों में शदीद खौफ व हरास फैला दिया है। तफसीलात के मुताबिक आधी रात के वक्त इस गिरोह के कारिंदों ने एक मकान में चोरी की नीयत से दाखिल होने की कोशिश की। अहम घर के मालिक सोनिंदा कुमार रेड्डी की बरवक्त बेदारी और होशियारी की वजह से मुल्ज़िमान अपने मकसद में नाकाम हो गए। जैसे ही घर वालों को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने शोर मचाया, चूर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलते ही तिरुपति रूरल पुलिस के सीआई मदा उचरी ने जाए वकुआ का दौरा किया और मुतासिरा खानदान की शिकायत पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों से अहम फुटेज हासिल हुई है, जिसमें मुश्तबा अफराद को मखसूस लिबास में घूमते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीर की मदद से पुलिस मुल्ज़िमान की शनाख्त करने और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर छापे मार रही है। इंतजामिया ने शहरियों को मोहतात रहने की अपील की है और रात के वक्त गश्त बढ़ाने का हुक्म दिया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जिला मीरचल के इलाके ओशापुर के करीब वरंगल से हैदराबाद जाने वाली एक महिंद्रा कार में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी, जिससे शाहरा पर अफरातफरी फैल गई। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कार में सवार 2 मरीजों को हंगामी इलाज के लिए वरंगल से हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। सफ़र के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी के इंजन से धुआं निकलते हुए देखकर फौरी तौर पर होशियारी का मुजाहरा किया और गाड़ी को सड़क के किनारे रोककर दोनों मरीजों को बहिफाजत नीचे उतार लिया।
चंद ही लम्हों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन ड्राइवर की बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मालूम होती है, जो तवील सफ़र के दौरान इंजन के ज्यादा गर्म होने की वजह से पेश आया। मुतासरा मरीजों को दूसरी गाड़ी के जरिए फौरी तौर पर अस्पताल रवाना कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम में कबायली कोऑपरेटिव कारपोरेशन (जीसीसी) के दफ्तर के बाहर एक खातून ने हुक्काम की मुबैना बदउनवानी और लापरवाही के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। करिश्ना कुमारी नामी इस खातून का इल्जाम है कि उनके शौहर कारपोरेशन से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके वाजिबात और ग्रेजुएटी की रकम जारी करने के एवज मुताल्लिका अफसरान 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। खातून ने इंतहाई दुख के साथ बताया कि उनकी बेटी की शादी तय पा चुकी है और उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से दफ्तर के चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके मुताबिक तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के बावजूद इंतज़ामिया जान बूझ कर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके। इस एहतजाज के दौरान खातून ने दफ्तर के सामने बैठकर इंसाफ की अपील की और बदउनवान अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कारपोरेशन के दीगर मुलाजमीन और वहां मौजूद शहरियों ने भी खातून की हालत जार पर हमदर्दी का इजहार किया और आला हुक्काम से मुदाखलत की दरख्वास्त की। फ़िलहाल जीसीसी के सीनियर अफसरान ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि खातून का कहना है कि जब तक उन्हें उनका जायज़ हक नहीं मिलता वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगी। లేదండి 6 ఏళ్ళుగా మీరేం చేస్తున్నారు? జీసీసీ వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు. టికెట్ तेलंगाना भर में आशा वर्कर्स की जानिब से चुल्लू हैदराबाद की काल के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें असेंबली के घेराव से रोका जा सके। आशा वर्कर्स का मुतालबा है कि जारिया बजट इजलास में उनके लिए 18,000 रुपये माहाना मुकर्ररा तनख्वाह का ऐलान किया जाए, जैसा कि इंतखाब से कबल वदा किया गया था। रियासत के मुख्तलिफ इजला से हैदराबाद पहुंचने की कोशिश करने वाली सैकड़ों ख्वातीन कारकुनों को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया, जबकि असेंबली के करीब पहुंचने वाली वर्कर्स को भी जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर मकामी थानों में मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो बरसों से इंतहाई कम उजरत पर काम कर रही हैं और मौजूदा हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करके जमहूरी आवाज़ को ताकत के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। इस एहतजाज की वजह से असेंबली के गिरदो नवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। अपोजिशन जमातों ने उन गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से आशा वर्कर्स के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है, जबकि वर्कर्स ने वाज़े किया है कि जब तक उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता वो अपनी जिदोजहद जारी रखेंगी। రండి.
ఎక్కడమ్మా ఎక్కడ ఎక్కమ్మా మెల్లగా ఎక్కడ